Hello students, good morning. Welcome to SAS online classes. Students, we were reading chapter 3, the story of Fizdie Philip of our English literature book as we Sasta. In our last video, our topics were exercise A, fill in the blanks to complete these sentences, which is page number 25 of this chapter 3, the story of the Fizdie Philip. And our next topic was word meaning of this chapter 3. So students, we have read and note down this word meaning of this chapter 3 in our Fair English Literature notebook, and we have also complete exercise A of this chapter 3 in our Fair English Literature book in our last video. And students, today's our topic is exercise B. Answer these questions, which is page number 25 of this chapter 3, the story of Fizdie Philip. So students, today we will solve exercise B. Answer these questions in our Fair English Literature notebook. Okay, so all students with special test in your class and listen to my words clearly. Let's see this exercise B. Okay, students, chapter number is chapter 3 and the name of this chapter is the story of Fizdie Philip. Story means kahani. Okay, of means ki, Fizdie means Fizdie here, the meaning of Fizdie, that bechan. Okay, it's mean a person who can't sit still at one place. एक ऐसा पर्सन जो एक जगह स्थिर होकर नहीं बैठ सकता, उसे बोलते हैं फिज्डी, बेचैन. ओके, फिलिप मीन्स इट्स अ बॉय नेम ऑफ दिस स्टोरी. द स्टोरी ऑफ फिज्डी फिलिप, इट्स मीन एक बेचैन फिलिप की कहानी. ओके, बेचैन फिलिप की कहानी. क्लियर? तो स्टूडेंट्स, लेट्स सी एक्सरसाइज बी. और एक्सरसाइज बी इज आंसर दीज क्वेश्चंस. आंसर मीन्स उत्तर दीजिए, दिस मीन्स ये क्वेश्चंस मीन्स प्रश्नों के. योर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ अ बॉय इज फिलिप. व्हाट मीन्स क्या, काइंड मीन्स प्रकार, ऑफ मीन्स का, आ मीन्स एक, बॉय मीन्स लड़का, इच मीन्स है, फिलिप मीन्स फिलिप. व्हाट काइंड ऑफ अ बॉय इज फिलिप, इट्स मीन फिलिप किस प्रकार का लड़का है. ओके, your first number answer is Philip is a feisty boy who cannot behave himself even when his parents tell him to. Okay, तो Philip means Philip, it means है, A means एक, feisty means here the meaning of feisty that बेचैन. Okay, a boy who can't never sit still at one place, जो कभी भी एक जगह पे स्थिर नहीं बैठ सकता, उसे बोलते हैं फिज्डी, बेचैन. ओके, बॉय मीन्स लड़का, हु मीन्स जो, कैन नॉट मीन्स नहीं सकता है, बिहेव मीन्स बर्ताव करना, व्यवहार करना, हिमसेल्फ मीन्स स्वयं से. ओके, स्वयं के साथ, एवन मीन्स कभी भी, व्हेन मीन्स जब, हिज मीन्स उसके, पेरेंट्स मीन्स मदर एंड फादर माता पिता, टेल मीन्स कहते हैं, ही मीन्स उससे, टू. ओके, Philip is a fidgety boy who cannot behave himself even when his parents tell him to. It's mean Philip एक बेचैन लड़का, एक फिज्डी बॉय है जो कभी भी अपने साथ वैसा बिहेव नहीं कर सकता, वैसे बर्ताव नहीं कर सकता है जैसा उसकी मदर एंड फादर, उसके मम्मी पापा उसे कहते हैं. फिज्डी फिलिप एक बेचैन लड़का है और जैसे उसके मम्मी पापा, जैसे उसके पेरेंट्स उसके साथ बिहेव करने को बोलते हैं, वो वैसा बिहेव बिल्कुल नहीं कर सकता है. ओके, let's see question number second. Your question number second is what did he do with the chair. Okay, what means क्या, did it's your past independence helping verb. he means where, do means करता है, with means साथ में, the chair means कुर्सी. what did he do with the chair, वह कुर्सी के साथ क्या करता था. okay, what did he do with the chair, वह कुर्सी के साथ क्या करता था. your second number answer is he swung the chair forwards and backwards and tilts it up like a rocking horse. he means वह swung it's a second form of swing की second form होती है swung, swung. okay, it's mean होता है झुलाना. okay, the chair means कुर्सी, forwards means आगे की ओर, and means और backwards means पीछे की ओर, and means और tilts, tilted. okay, sorry, tilted, here the meaning of tilted that move, घुमाना. it means इसे. okay, here we use it for chair. okay, up means ऊपर, like means तरह, आ means एक, rocking horse की तरह. okay, he swung the chair forwards and backwards and tilted it up like a rocking horse. okay, तो वह अपनी कुर्सी को आगे की ओर और पीछे की ओर घुमाता है और ऊपर ले जाता है एक रॉकिंग हॉर्स की तरह. ओके, तो स्टूडेंट वो अपनी चेयर को एक रॉकिंग हॉर्स उसने बना रखा होता है, एक रॉक करता हुआ हॉर्स बना रखा होता है. ओके, झूले झूलते हुए एक हॉर्स बना रखा है जो फॉरवर्ड्स बैकवर्ड्स करते हैं ना, सेम वैसे ही. ओके, तो ही swung the chair forwards and backwards and tilted it up like a rocking horse. okay, तो वह अपनी कुर्सी को आगे की ओर, पीछे की ओर और आगे की ओर, पीछे की ओर घुमाता है और उसे ऊपर की ओर थोड़ा सा ले जाता है. ओके, लाइक अ रॉकिंग हॉर्स, एक रॉकिंग हॉर्स की तरह. ओके, सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर थर्ड. योर क्वेश्चन नंबर थर्ड इज हाउ डिड हिज मदर रिएक्ट. ओके, हाउ मीन्स कैसे, डिड इट्स योर पास्ट इंडिपेंडेंस हेल्पिंग वर्ब, हिज मीन्स उसकी, मदर मीन्स माँ, रिएक्ट मीन्स
रिएक्ट मीन्स होता है बिहेव करना, इट्स मीन बर्ताव करना, रिएक्ट करना, प्रतिक्रिया देना. ओके, हाउ डिड हिज मदर रिएक्ट, उसकी माँ ने कैसे प्रतिक्रिया दी थी. ओके, उसकी माँ कैसे प्रतिक्रिया दी थी. ओके, तो उसकी माँ ने कैसे रिएक्ट किया था. ओके, योर थर्ड नंबर आंसर इज हिज मदर वाज वेरी सीरियस एंड बिकेम वेरी एंग्री व्हेन ही डिड नॉट सिट स्टिल एट द टेबल. ओके, हिज मीन्स उसकी मदर मीन्स माँ, वाज इट्स अ पास्ट कॉन्टिन्यूअस हेल्पिंग वर्ब इन सिंगुलर फॉर्म, वेरी मीन्स बहुत, सीरियस मीन्स गंभीर ग्रेव. ओके, एंड मीन्स और बिकेम मीन्स बनना होना. ओके, वेरी मीन्स बहुत, एंग्री मीन्स गुस्सा. ओके, नाराज when means जब, he means where, here we use he for Philip. ओके, हम यहाँ स्टैंड ही का यूज़ कर रहे हैं फिलिप के सेंस में. ओके, डिड नॉट सिट मीन्स बैठना, स्टिल मीन्स स्थिर, सीधे, एट टेबल मीन्स टेबल पर. ओके, हिज मदर वाज वेरी सीरियस एंड बिकेम वेरी एंग्री व्हेन ही डिड नॉट सिट स्टिल एट द टेबल. ओके, तो उसकी माँ बहुत ही गंभीर हो गई थी और बहुत ही गुस्से में हो गई थी, बहुत ही गुस्सा कर रही थी. ओके, जब वो टेबल पे सीधे स्थिर नहीं बैठ रहा था. ओके, तो स्टूडेंट वी हैव रीड दिस स्टोरी ऑफ फिजडी फिलिप एंड वी हैव रीड कि ये जो फिलिप बॉय है बहुत ही फिजडी है, बहुत ही बेचैन है. ओके, ही कांट सिट स्टिल एट वन प्लेस. ओके, तो ये कभी भी एक प्लेस पे कभी भी स्थिर नहीं बैठ सकता है, हमेशा शरारत करता रहता है. ओके, बहुत ही नॉटी बॉय. तो स्टूडेंट योर क्वेश्चन इज हाउ डिड हिज मदर रिएक्ट. ओके, कि उसकी माँ ने क्या प्रतिक्रिया दी थी. ओके, तो हिज मदर वाज वेरी सीरियस एंड बिकेम वेरी एंग्री व्हेन ही डिड नॉट सिट स्टिल एट द टेबल. तो उसकी माँ बहुत ही गंभीर हो गई थी और नाराज़ हो गई थी जब वह टेबल पे स्थिर नहीं बैठ रहा था. ओके, जब वो टेबल पे स्थिर नहीं बैठता था तो उसकी माँ बहुत ही गंभीर हो गई थी और नाराज हो गई थी. ओके, तो स्टूडेंट लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4. योर क्वेश्चन नंबर 4 इज नेम द थिंग्स दैट ब्रोक इन द पोम. ओके, नेम मीन्स नाम, द थिंग्स मीन्स ऑब्जेक्ट्स वस्तुओं के, दैट मीन्स जो, ब्रोक मीन्स टूट गए, इन द पोम मीन्स पोम में. ओके, तो नेम द थिंग्स दैट ब्रोक इन द पोम, तो उन वस्तुओं के नाम मतलब लिखिए जो पोम में जिन्हें बताया गया और जो टूट गए. नेम द थिंग्स दैट ब्रोक इन द पोम, तो वस्तुओं के नाम बताए जो टूट गए हैं. ओके, इस पोम में, इस कविता में उन वस्तुओं के नाम बताए जो टूट गई. ओके, तो स्टूडेंट वी हैव रीड दिस चैप्टर द स्टोरी ऑफ फिजडी फिलिप एंड वी हैव रीड कि स्टोरी में क्या होता है. ये जो फिलिप बॉय है जो बहुत ही नॉटी है, बहुत ही फिजडी है, बेचैन है, हर टाइम ऑल टाइम नॉटी मतलब शरारती करते रहता है, बहुत ही नॉटी बॉय. तो ये क्या करता है कि अपनी चेयर को इसने एक रॉकिंग हॉर्स बना रखा होता है. अपनी चेयर को बार बार फॉरवर्ड्स अपवर्ड्स करता है, आगे क्यों ले जाता है, पीछे क्यों ले जाता है. और फिर क्या होता है, वो तब तक इतनी शैतानी देता रहता है, तब तक उसे एक रॉकिंग हॉर्स बना रखा है जब तक कि वो गिर नहीं जाता है. और जैसे वो, क्योंकि चेयर को जब रॉकिंग हॉर्स बनाएंगे तो ऑब्वियसली है कि वो गिरेगी, क्योंकि वो तो रॉकिंग हॉर्स नहीं है, वो तो चेयर है ना. तो जब अपनी चेयर के साथ आप गेम प्ले करोगे, खेलोगे ना, उसे रॉकिंग हॉर्स बनाओगे तो ऑब्वियसली आप गिर जाओगे ना. तो वो चेयर को बैकवर्ड्स कर रहा है, फॉरवर्ड्स कर रहा है, उसके साथ उसे स्वयं कर रहा है एक लाइक अ रॉकिंग हॉर्स. तो जैसे वो, जब वो तब तक शैतानी करते जब वो तब तक वो गिरने वाला नहीं होता, और जैसे ही वो गिरने वाला होता है तो ही कैच अ टेबल कवर. ओके, तो वो क्या करता है, वो टेबल जो कवर होता है, जो टेबल का क्लॉथ होता है, जो मेज पोस्ट होता है, जो टेबल पे पड़ा हुआ होता है. ओके, जो टेबल को कवर जिससे कर के उसे बोलते हैं टेबल क्लॉथ मीन्स मेज पोस्ट. तो उसको वो पकड़ लेता है, और चूँकि जो बॉय है फिलिप, चूँकि तो थोड़ा सा उसका वेट ज़्यादा है और क्लॉथ तो बहुत लाइट होता है, बहुत हल्का होता है. तो उसने क्या करता है, उस कवर को, जो उस टेबल क्लॉथ को पकड़ लेता है, और जब वो गिरता है ना तो साथ में उसको भी लेके गिरता है. और चूँकि स्टूडेंट्स जो टेबल है उस पर डिनर रखा होता है, बहुत सारा ऑब्जेक्ट्स रखा होता है, तो वो सारा ऑब्जेक्ट्स उसके ऊपर गिर जाता है, पूरा डिनर गिर जाता है ना. तो उसमें जो ऑब्जेक्ट्स था वो गिर के स्नैप्ड हो जाता है, दो टुकड़ों में टूट जाता है, दो भाग में टूट जाता है. ओके, तो आपका क्वेश्चन मैं आपसे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि नेम द थिंग्स दैट ब्रोक इन द पोम. ओके, तो टूटी हुई वस्तुओं के नाम बताइए. ओके, इन द पोम इट्स मीन कविता में टूटी हुई वस्तुओं के नाम बताइए. ओके, तो स्टूडेंट लेट्स सी योर 4 नंबर इज डिशेस, ग्लासेस एंड प्लेट्स ब्रोक. ओके, जो थिंग्स ब्रोक हुई थी ना, टूट गई थी ना, स्नैप्ड हो गई थी, दो टुकड़ों में बट गई थी, वो क्या थी, डिशेस, DISHES, डिशेस मीन्स बर्तन. ओके, ग्लासेस इट्स मीन होता है ग्लास. ओके, पानी पीने का बर्तन. एंड मीन्स ऑफ प्लेट्स मीन्स थालियाँ, ब्रोक मीन्स टूट गए. डिशेस, ग्लासेस एंड प्लेट्स ब्रोक इट्स मीन बर्तन और पानी पीने का बर्तन और थालियाँ टूट गई. क्लियर. योर question number 5 is, which is last question of this exercise B. Okay, so look Lali, your 5th number question is,
What was a terrible thing to do? What means क्या, was means थी, was it's a past continuous helping verb in singular form. means एक terrible means भयानक. Okay, thing means चीज, to do. Okay, तो what was a terrible thing to do? तो क्या भयानक चीज़ हो गई थी. ओके, क्या डराने वाली चीज़ हो गई थी. योर फिफ्थ नंबर आंसर इज एज फिलिप वाज फॉलिंग डाउन he pulled the tablecloth down with him. Everything on the table also fell down, and that was a terrible thing to do. Okay, तो as means जैसे ही फिलिप, it's a boy name who is very fidgety, very naughty. Okay, was means था, falling means गिरा. Okay, गिरा था. डाउन मीन्स नीचे, ही मीन्स उसने, पुल्ड मीन्स खींचा. पुल्ड इट्स अ सेकंड फॉर्म ऑफ पुल. पुल मीन्स खींचना, पुल्ड मीन्स खींचा. द टेबल मीन्स मेज, क्लोथ मीन्स कपड़ा. टेबल क्लोथ मीन्स मेज का कपड़ा या मेज पोस्ट जिसे बोलते हैं. जैसे बेड शीट होती है ना, वैसे टेबल क्लोथ होता है. जैसे बेड को कवर करने के लिए हम बेड शीट उस पर करते हैं ना, बेडशीट से कवर करते हैं ना बेड को, वैसे ही टेबल को कवर करने के लिए हम टेबल क्लॉथ का यूज़ करते हैं. ओके, टेबल क्लॉथ मीन्स होता है मेज पोस्ट. डाउन मीन्स नीचे, एंड विथ मीन्स साथ में, ही मीन्स उसके. ओके, एज फिलिप वॉज फॉलिंग डाउन ही पुल्ड द टेबल क्लॉथ डाउन विथ हिम. ओके, तो जैसे ही फिलिप नीचे गिर रहा था तो उसने टेबल क्लॉथ को, मेज पोस्ट को पकड़ा. ओके, वो पकड़ा डाउन विथ हिम. ओके, अपने साथ गिरते हुए. ही पुल्ड अ टेबल क्लॉथ डाउन विथ हिम. तो वो उसने क्या किया, अपने गिरते हुए उसने टेबल कवर को पकड़ लिया. जैसे ही फिलिप नीचे गिर रहा था तो उसने गिरते हुए टेबल क्लॉथ को, मेज पोस्ट को पकड़ लिया. एवरीथिंग ऑन द टेबल आल्सो फेल डाउन. ओके, एवरीथिंग मीन्स प्रत्येक वस्तु, ऑन मीन्स पर, द टेबल मीन्स मेज, आल्सो मीन्स भी, फेल डाउन मीन्स नीचे गिर गई. एवरीथिंग ऑन द टेबल आल्सो फेल डाउन. तो मेज पर जितनी भी चीज़ें रखी थी वो नीचे गिर गई. एंड मीन्स और दैट जो. ओके, वाज मीन्स था, मीन्स एक, टेरिबल मीन्स भयानक, डराने वाला, थिंग मीन्स चीज़. ओके, टू डू. तो इट्स मीन एंड दैट वाज अ टेरिबल थिंग टू डू. इट्स मीन ये डराने वाली चीज़ थी. ओके, ये डराने वाला काम था. ओके, ये डराने वाला उसने काम किया था. तो योर फिफ्थ नंबर आंसर इज एज फिलिप वाज फॉलिंग डाउन ही पुल्ड द टेबल क्लॉथ डाउन विथ हिम. एवरीथिंग ऑन द टेबल आल्सो फेल डाउन, एंड दैट वॉज अ टेरिबल थिंग टू डू. इट्स मीन जैसे ही फिलिप नीचे गिर रहा था, जो फिस्डी बॉय फिलिप है, और जैसे ही वो नीचे गिर रहा था ना, तो उसने मेज पोस्ट को, टेबल क्लॉथ को पकड़ लिया गिरते हुए. जैसे ही फिलिप नीचे गिर रहा था तो उसने गिरते हुए मेज पोस्ट को, टेबल क्लॉथ को पकड़ लिया, और सारी चीज़ें भी उसके साथ नीचे गिर गई. और ये जो चीज़ थी, ये जो काम था, ये डराने वाली चीज़ थी. ओके, ये चीज़ डराने वाली थी. तो स्टूडेंट्स, योर 5 number question has finished. Okay, and I hope you must have understood this question. Okay, so student, we have completed all these questions of this exercise B. Okay, and I hope you must have understood all these questions of this exercise B. You have no problem in this exercise B. Clear? And students, today's your classwork is that note down this exercise B, answer these questions of this chapter 3, the story of Fizdey Philip, in your Fire English Literature notebook. It's your today's classwork. And student, your homework is that learn this exercise B, answer these questions of chapter 3, the story of Fizdey Philip, from your Fire English Literature notebook. It's your today's homework. Okay, तो student, आपका classwork है, आपको ये exercise B, okay, which have only 5 question, जिसके पास सिर्फ 5 question है, आपको चैप्टर 3 की जो एक्सरसाइज बी है, या आपको अपनी फेयर इंग्लिश लिटरेचर की नोटबुक पे नोट डाउन करनी. इट्स अ 2 days क्लास वर्क, ये आपका क्लास वर्क है. ओके, और स्टूडेंट, आपका होमवर्क क्या, आपको ये एक्सरसाइज भी अपनी फेयर इंग्लिश लिटरेचर की नोटबुक से लर्न करनी है. ओके, बहुत ही सिंपल सा वर्क है. आई गिव यू ओनली 5 क्वेश्चन आंसर फॉर लर्न. ओके, लर्न करने के लिए और राइट करने के लिए ओनली 5 क्वेश्चन आंसर दे रही हूँ. आपको ये क्वेश्चन आंसर लर्न करनी. इट्स योर होमवर्क, क्या आपका होमवर्क है. ओके, तो स्टूडेंट, योर क्लास वर्क एंड होमवर्क इज क्लियर ना. सो ऑल स्टूडेंट, कंप्लीट योर क्लास वर्क. Firstly, note down this exercise. We answer these questions of this chapter 3, the story of Fizdey Philip, in your Fair English Literature notebook, and send me your work here. Thank you.